This is the discouragement that the parents give to a child. वो जो एक pressure parents feel करते हैं ये of the failure, their child being tagged as a failure, और the fear of having their child not succeeding in life in future, वो mindset change करने की बहुत ज़रूरत है. वो mindset change इस तरह करने की ज़रूरत है कि parents को बताया जाए कि failure को आप as a feedback लें to explore new learning experiences. Constructive feedback नहीं देते. हमारे यहाँ feedback negative दी जाती है. We don't give constructive feedback. Constructive feedback means कि you have to give him a guideline कि ये failure हुआ है, किस वजह से हुआ है, इससे क्या learning होगी और उसको आगे कैसे improve किया जा सकता है. कि आपने setback face किया है, it's okay to fail at some time. और उस setback को फिर आप use करें as a learning experience, as an indicator कि आपने comeback कैसे करना है. Thomas Edison failed 1,000 times before inventing this electric bulb. तो इसका मतलब है कि कोई ना उसने लर्निंग तो की ना अपने हर फेलियर से. एट लास्ट ही रीच्ड दैट पॉइंट वेयर ही हैड इन्वेंटेड. So why are the parents today are more afraid of their children failing than ever before? Okay. The first thing is that our society takes failure as a taboo, you can say. And then the parents think that this is the dead end. And if their child has failed, so there is nothing beyond that. Basically, the concept of fail forward is not very much common among our parents, and they don't understand that they don't have to take it as a dead end. Rather, they should take it as an information which would guide them for further improvement. So again, societal pressures. They think that if their child has failed, so that would one thing is that they think that he's not capable of doing anything after that. So that is the end, dead end. And secondly, obviously, the society takes it as if somebody has failed, so as an incompetent person, so they don't want their child to be tagged and labeled as an incompetent person, as a failure. Yes. So the concept of making a setback, converting or changing a setback into a comeback is not there. Yes. And they don't take it as an opportunity to think ahead and use this failure as a learning experience for further improvement. Okay, that's great. So Yeah. actually the main reason is actually for the parents Ji, that there is a mindset, there is a mindset. social comparison, Yeah, and there are social pressures. social Jo- pressures. that becomes the reason. And then there is this fear of having a child as a failure who might not be able to compete in the world, who might not be able to succeed in the world in future. So they think that if their child has failed, this is the end. Now he is not capable of doing anything after Anything. that. Yes. This is very important. Yeah. कि अगर एक बच्चा जो he or she is failed in a certain area, Yeah. so it is being assumed कि ये it is Dead end. a Yeah, failure, ji. a complete failure. Yes, he's a complete failure. वो जो- They don't try to explore other domains where he might have an interest in, and where he might be performing better than one thing in which he has failed. So again, as we have been working in the school environments and interacting with the parents, so family pressures are there. What would the family say if our child fails? Even if the child fails, they prefer to change the school where they can get him into the next class, next grade, Yeah. instead of making him repeat the same class in the same school, because they are they feel embarrassed. Repeat is a big stigma, you know. Yeah, So- it is a stigma. Yeah. Actually, I have worked with some of the students Yeah. जहाँ पे they used to prepare for the medical colleges. Ji. And the competition is very tough. Yeah. So whenever there is a failure, or if we say it like that, so they are very afraid of repeating. Repeating What would- and facing Facing the Actually, failure. Facing the failure is the main thing. Yeah.
So what happens actually जब Hmm. parents जो है वो they try to shield their children from the failure? What happens? What does a child look like then? Yeah. Basically, if you, as a parent, have kind of refused to accept your child's failure, means that you have told him, you have labeled him that he is not capable of doing anything in life. So, this is the discouragement that the parents give to a child. And once the child is discouraged, once he is labeled, he is tagged as a failure, the motivation dies. He is not motivated to explore any new dimension or to improve his skills or competencies. He loses that motivation to take that failure as a learning experience for further improvement. As you said, this is actually an information, right? This is the failure is actually a feedback. It is a feedback, yes. For the areas of improvement. Yeah. And that can be improved. That can be improved. Right. Like all of us have not mastered everything in life. When we were students, we were not like perfect in every subject. If I give my example, I was always facing a very difficult time learning maths. So that did not mean that I was a failure just because I was not able to do well in maths. I had other things which I was very good at. So my parents encouraged me to explore those dimensions. So what are the reasons? I feel कि is there आपका lack of awareness? Lack of जिसकी वजह awareness, से definitely. हम लोग जो है वो इसको बच्चों वो हम कोप अप नहीं करवा पा रहे. कोप अप नहीं करवा पा रहे. लैक ऑफ अवेयरनेस है और एक लैक ऑफ एफर्ट है टू चेंज द माइंडसेट. वो जो एक प्रेशर पेरेंट्स फील करते हैं ये ऑफ द फेलियर, देयर चाइल्ड बीइंग टैग्ड एज अ फेलियर, और द फियर ऑफ हैविंग देयर चाइल्ड नॉट सक्सीडिंग इन लाइफ इन फ्यूचर, वो माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है. वो माइंडसेट चेंज इस तरह करने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स को बताया जाए कि फेलियर को आप एज अ फीडबैक लें टू एक्सप्लोर न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस. किस तरह से उस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चीज़ में नहीं सक्सेसफुल हो रही तो इट शुड बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि व्हाट शुड आई डू टू इम्प्रूव दैट थिंग. पेरेंट्स की अनफॉर्चुनेटली जो लैंग्वेज हो जाती है, एक बच्चा जो फेल हो जाता है उसके लिए, दैट इज़ वेरी डिस्करेजिंग. इवन टीचर्स, एजुकेटर्स, दे लेबल दैट चाइल्ड, तुम कुछ नहीं कर सकते, यू आर अ फेलियर. आप उसको बताते ही नहीं है, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं देते. हमारे यहाँ फीडबैक नेगेटिव दी जाती है. वी डोंट गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मीन्स कि यू हैव टू गिव हिम अ गाइडलाइन कि ये फेलियर हुआ है, किस वजह से हुआ है, इससे क्या लर्निंग होगी और उसको आगे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. अब ये इसको भी समझने की ज़रूरत है ना कि देयर आर अगेन द चाइल्ड कुड हैव समथिंग एल्स जिसके ही और शी कैन एक्सेल. जी. लाइक जैसे वो हावर्ड गार्डन का आई गेस मल्टीपल इंटेलिजेंस की जैसे एक थ्योरी है. इट सेज के तेरे को डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं बच्चों के. आपने हो सकता है उस लर्निंग स्टाइल को एड्रेस ही नहीं किया. एड्रेस ही नहीं किया. जैसे मैं कल भी अपनी एक क्लास में स्टूडेंट से यही बात कर रही थी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द लर्निंग स्टाइल्स एंड आई वाज कोटिंग माय ओन एग्जांपल ऑफ दिस, माय डिफिकल्टीज विद मैथमेटिक्स. तो मैंने कहा कि मैं बहुत अरसे तक ये समझती रही कि शायद मेरी टीचर अच्छी नहीं थी. बट आफ्टर ऑलमोस्ट 40 years नाउ आई कैन रियलाइज, जब मैंने ये सारी प्रोसेसेस समझे, मेरी लर्निंग हुई कि मे बी आई हैड अ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स विच माई टीचर कुड नॉट अंडरस्टैंड कि इसको किस तरह से समझाना चाहिए था. तो दैट वाज माई फेलियर. बट अगर मेरे लर्निंग स्टाइल को कैटर कर लिया जाता तो मे बी आई कुड हैव एक्सेल्ड इन दैट. तो फेलियर को डेड एंड के तौर पर नहीं लेना चाहिए, विच इज अ माइंडसेट इन आवर सोसाइटी. राइट. ओके, सो व्हाट इज
more dangerous, failure or avoiding the failure? Avoiding the failure. Okay. Avoiding the failure, and even more than that, taking failure as a dead end. आप समझते हैं कि यहाँ पर ये एक डेड एंड आ गया है, द चाइल्ड इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, उसकी एबिलिटीज, उसकी कॉम्पिटेंसीज, उसकी स्किल्स जो हैं यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं. यहाँ पर वही बात हम करेंगे जो फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की होती है. फिक्स्ड माइंडसेट में आप ये सोच लेते हैं कि एवरी पर्सन हैज़ अ फिक्स सेट ऑफ स्किल्स, एबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज, उससे बियॉन्ड वो नहीं जा सकता. वेयर एज जब आप ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करते हैं तो you make them believe, the children as well as we need to work on the mindset of the parents, कि the abilities, competencies, skills can be improved. उनके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत होती है. लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू उनको एज एन इंडिकेटर्स लेने की ज़रूरत होती है जिससे आप अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं. तो ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Right. So, what do you think that what would be missing if there is no failure in the life of that kid? फिर तो बहुत सब कुछ इजी इजी चलता जाएगा, हार्ड वर्क खत्म हो जाएगा. हाँ. ठीक है ना. मेरे लिए हर चीज सक्सेस बन जाएगी तो व्हाई शुड आई वर्क हार्ड. सो एवरीथिंग शुड नॉट बी सर्व्ड इन अ प्लेट. You have to work hard, and failures are obviously your, मैं तो कहूँगी stepping stones हैं. So, if we talk about it more precisely, जी. what skills would be missing अगर failure को जो है वो शील्ड करते रहते हैं पेरेंट्स, या अगर उसकी फेलियर शील्ड होती रहती है बच्चे की टू अ सर्टेन लेवल, अप टू अ सर्टेन लेवल, तो व्हाट आर द स्किल्स? व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय शील्डिंग द फेलियर? मतलब कि वो उसको कवर करके उसे आगे ले जा रहे हैं. यस. जैसे आपने एग्जांपल, बेसिकली फिर वो लर्निंग तो नहीं हो रही ना बच्चे की. लर्निंग को ख़त्म कर रहे हैं वो बच्चे की. उसको नहीं पता चल रहा कि व्हाट ही और शी नीड्स टू वर्क ऑन. उसके फेलियर को आप कवर करते जा रहे हैं, शील्ड देते जा रहे हैं, तो देयर आर नो इंडिकेटर्स फॉर हिम टू नो व्हाट आर द एरियाज वेयर ही और शी नीड्स टू इम्प्रूव. तो वो इंडिकेटर्स ही आपने ख़त्म कर दिया तो फिर वो हार्ड वर्क और वो एफर्ट ख़त्म हो जाएगी. And maybe it would result in a much bigger and greater failure at a certain point in future. Definitely. Okay. Then it would be bursting. Exactly. जितनी भी वो जी. weaknesses हैं, हाँ. वो इसमें one of the thing is जो कि आजकल तो मेरा ख्याल है much more important than the resilience. Resilience. इसी तो जो setbacks हैं the we face in life, तो Exactly. उसमें resilience would be missing. देखिए, resilience is, what is resilience? It is basically your journey from us facing a setback towards making a comeback. Yes. ठीक है ना. हाँ, बाउंस बैक करना है. आपने बॉल को जमीन पे फेंका, बाउंस बैक करेगी ना तो तभी ऊपर आएगी ना. तो इट्स द सेम कि आपने सेटबैक फेस किया है, इट्स ओके. इट्स ओके टू फेल एट सम टाइम. और उस सेटबैक को फिर आप यूज करें एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, एज एन इंडिकेटर कि आपने कम बैक कैसे करना है. व्हाट वर द एरियाज वेयर यू लैग्ड, व्हाट आर द एरियाज वेयर यू नीड टू वर्क ऑन, और उस पे फिर आप काम करके उस चीज को इम्प्रूव करें एंड यू मूव टुवर्ड सक्सेस. Right. That means कि जो the failure actually it is kind of a blessing for someone if it is taken A blessing in disguise, you can in say. disguise. अगर if it is taken in a Yeah. true spirit. If you remember 19 I think 87 और 88 में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का लूज किया था. That was in Lahore. जी 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 जी. And it was the most hot, मतलब हॉट फेवरेट टीम थी. उसके बाद लोगों ने कहा जी अब ये कम बैक नहीं कर सकती टीम. 92 में उसी टीम ने वर्ल्ड कप जीत के दिया ना आपको. दे मेड अ कम बैक. तो क्यों नहीं हो सकता? दैट इज, you need to develop certain you can say skills or values among your children. आपको उन्हें perseverance सिखाने की ज़रूरत है. You need to teach them curiosity, asking questions to themselves. Where do I lack? What do I need to work on?
तो ये वो वैल्यूज हैं जो आपको बच्चों को सिखाने की ज़रूरत होती है, सो दैट दे कैन they do not lose heart with failure, but they take it as a learning experience. Right. So it's all about not about the kids. Actually, It's basically the training of the teachers and the and the parents parents. and the society. Yeah. बिल्कुल सही If बात they है are trained to जी। again frame it rightly, देखिए बच्चे को तो Ba- आप जो डायरेक्शन में चलाएंगे बच्चे ने उसी डायरेक्शन में चलना है ना। तो अगर आप आके ये कहते हैं कि यू हैव फेल्ड नाउ दिस इज द एंड, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उस बच्चे ने फिर आगे कुछ नहीं करना। Mm. So if a kid is continuously failing, whose fault is this actually, वो or हाँ how to handle this? बिल्कुल उसमें आपको फिर बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। आपको उसकी इमोशनल स्टेट देखनी पड़ेगी, क्या वो इमोशनली किसी सेटबैक का शिकार है, उसके लर्निंग स्टाइल को आप केटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मे बी ही हैज सम अदर लर्निंग स्टाइल जो विच इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू हिम, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है उस चीज़ को समझने में। उसके ऊपर सोसाइटी के क्या प्रेशर्स हैं, फैमिली के क्या प्रेशर्स हैं, उनको किस तरह से रिमूव करना है। वन बाय वन यू हैव टू लुक इनटू ऑल द फैक्टर्स, उसके बाद ही आप, जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी ना चीज़ों की, यू कैन नॉट मूव टुवर्ड्स अ रेमेडी। आइडेंटिफिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेज, आइडेंटिफाई करके फिर आप उस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली देयर वुड बी सम बेटर रिजल्ट। That means there are some blockades. जी Those need to be identified. या Or- आप देख लेना फिर आपके जितने बड़े बड़े इन्वेंशंस करने वाले थे, थॉमस एडिसन फेल्ड 1000 टाइम्स बिफोर इन्वेंटिंग दिस इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसका मतलब है कि कोई ना उसने लर्निंग तो की ना अपने हर फेलियर से, एट लास्ट ही रीच्ड दैट पॉइंट वेयर ही हैड इन्वेंटेड। ये वो आपका पॉइंट रियली स्ट्राइक्स मी हार्ड कि जो आपने कहा ना कि दिस इज एन इंफॉर्मेशन एक्चुअली एग्जैक्टली देयर नीड्स टू यस अगेन या टू बी इम्प्रूव समथिंग टू बी इम्प्रूव। एग्जैक्टली टू देखिए हम gain एक सिंपल, बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूंगी कि स्कूल में हम बच्चों की नोटबुक्स चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ गलती होती है हम उसे अंडरलाइन कर देते हैं एक रेड पेन से। क्या हम कभी उसको ये बताते हैं कि इसको तुमने ठीक कैसे करना है? हम नहीं बताते ना, हम सिर्फ गलती को पॉइंट आउट करते हैं। तो सेम अप्लाइज ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फेलियर। हम उसकी फेलियर को तो देख लेते हैं और हम उसको कहते हैं जी आप फेल हो, फेलियर है। हम उसको ये नहीं बताते कि इस फेलियर को ओवरकम कैसे करना है, विच आर द एरियाज विच नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, तुम्हें किस डायमेंशन में काम करने की ज़रूरत है। हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं देते। डू वी नीड टू नॉर्मलाइज फेलियर क्योंकि उसके अंदर फिर उसका आपको काफी हद तक उसको नॉर्मलाइज करने की इस लिहाज से जरूरत है। ये नहीं कि आप बच्चे को सिर्फ यही कहते हैं कि अच्छा फेल हो गया कोई मसला नहीं, होते रहो। ये दैट इज नहीं, माय नेक्स्ट that is क्वेश्चन not- एक्चुअली उसको वो फिर बच्चे का जो फियर फैक्टर है जिसकी वजह से वो जो पॉजिटिव स्ट्रेस लेता है जी नॉट द नेगेटिव स्ट्रेस जो ये positive नेगेटिव stress स्ट्रेस भी बहुत आता है। आता है हाँ। वो तो अब आता है ना, अगर हम Negative इसको stress नॉर्मलाइज बहुत कर आता देंगे तो फिर वो पॉजिटिव स्ट्रेस भी नहीं आप मिलेगा। देखें पिछले कुछ सालों में आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दे कमिटेड सुसाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एकेडमिक प्रेशर्स। तो व्हाट वाज दैट? आपकी सोसाइटी का प्रेशर था, आपके इंस्टीट्यूशन का प्रेशर था, आपकी फैमिली का प्रेशर था। आपको उसको थोड़ा सा उस प्रेशर को भी रिलीज करने की ज़रूरत है, लेकिन ये बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को कि हर दफ़ा फेल हो जाओ तो टेक इट एज अ नॉर्मल। यू हैव टू, अगेन वही बात जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की हम बात कर रहे हैं, कि यू हैव टू गाइड हिम कि इसको देखो कि व्हाट वर द फैक्टर्स व्हिच कॉज दिस फेलियर, इंडिकेटर्स क्या थे, उनको आइडेंटिफाई करो एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन देम एंड देन मूव टुवर्ड्स सक्सेस। So when it happens, whenever there is a failure Hmm. for a student or for any kid, so how should parents or the caregivers they should behave, and what should the vocabulary they should Yes, choose? this is what I was going to talk about, कि आपकी जो पेरेंट्स की, जो टीचर्स की लैंग्वेज है ना, वो बहुत मैटर करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक बच्चा जब फेल हो जाता है ना किसी भी चीज़ में, बी इट एकेडमिक्स, बी इट प्रोफेशनल लाइफ, व्हाटएवर, Hmm. हमारे यहाँ पेरेंट्स, टीचर्स सब उसके लिए बहुत एक नेगेटिव जो है ना लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर देते हैं। यू आर अ फेलियर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग,
तुमसे नहीं हो सकेगा ये, जो रही सही उसमें मोटिवेशन होती है, आप उसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये है, एक चीज़ सिखाने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है बच्चों को स्पेशली, दे हैव टू आइडेंटिफाई देयर इमोशंस एट द टाइम व्हेन दे फेल, हाउ डू दे फील। वो जो अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस है, इमोशनल अवेयरनेस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उसको अपने इमोशनल रेगुलेशन सिखाने की बहुत ज़रूरत है कि हाउ टू चैनलाइज देयर एनर्जीज, हाउ टू कंट्रोल एंड मैनेज देयर इमोशंस। अब वो इमोशंस मैनेज उसी वक्त हो सकते हैं जब पेरेंट्स की सपोर्ट उनको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेरेंट कहता है यू हैव फेल्ड, वो उसकी जगह ये भी तो कह सकता है कि दिस इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू, ट्राई टू वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना? आप थोड़ी सी सपोर्टिव लैंग्वेज यूज कर लें, आप थोड़ी सी मोटिवेशनल फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। तो उसको नेगेटिविटी की तरफ ना लेके जाएं अपनी लैंग्वेज से, उसको थोड़ा सा एनकरेजमेंट दें टुवर्ड्स वर्किंग ऑन हिज वीकनेसेस। ओके, ये तो आई गेस अब यहाँ पे भी डिफरेंट सिचुएशंस बन जाती हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर हम उसमें टू प्रोमिनेंट सिचुएशंस को ले लेंगे, वन इज जिसमें बच्चे ने ट्राइड हार्ड जी। और देन फेयर्ड, लेकिन एक सिचुएशन में बच्चा डिडंट ट्राई लेकिन वो फेल हुआ है, तो अब दोनों में रिस्पॉन्स जो है वो क्या वुड रिमेन सेम? You need Yeah. to try hard next time. ओके, You could not make it this time. You could not make it yet. Try to work hard and try to make it next time. बट व्हाट इफ ही और शी वाज Again, कैजुअल, मतलब उसने बस ट्राई नहीं किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ। तो फिर उसमें आप ये देखें ना कि उसके टीचर्स का और पेरेंट्स का रोल क्या रहा है। अगर वो इतना कैजुअल था, आपने आइडेंटिफाई किया था या नहीं उसके कैजुअल बिहेवियर को? अगर वो कैजुअल बिहेवियर आपको नजर आ रहा था, तो व्हाट डिड यू डू टू मेक हिम वर्क ऑन दैट कैजुअल बिहेवियर? इसका मतलब है आपने उसका कैजुअल बिहेवियर चलने दिया और यू अलाउड हिम टू फेल, और उसके बाद आप उसे लेबल कर रहे हैं और उसे अटैक कर रहे हैं। दैट इज नॉट द वे। आप पहले आइडेंटिफाई करें उसके उस कैजुअल बिहेवियर को भी, उस कैजुअल बिहेवियर के बैकग्राउंड में क्या फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, एंड देन टॉक विद हिम। कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कम्युनिकेट करेंगे, मे बी यू विल आइडेंटिफाई सर्टन थिंग्स जो उस कैजुअल बिहेवियर की बैकग्राउंड में होती हैं। इफ़ यू अलाउ मी, आई कैन कोट वन एग्जाम्पल। आई वॉज वर्किंग इन अ स्कूल, और जब मैंने नया नया ज्वाइन किया तो सीनियर स्कूल का एक बच्चा था, और स्कूल में कोई फड्डा हुआ है, बच्चों की लड़ाई हुई है, कुछ हुआ है, सबसे पहले मीटिंग में उसका नाम आता था, उसने किया होगा। अब आप ये देखें, देयर वॉज नो एविडेंस कि उसी ने किया है, लेकिन हर बात में वो उसका नाम लेते थे। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं उस बच्चे को देखूं आखिर वो क्या चीज़ है कि हर डिसरप्टिव बिहेवियर में उसका नाम आता है। एंड व्हेन आई गॉट टू मीट हिम वन डे, बड़ा प्लेजेंट, बड़ा फ्रेंडली बच्चा, और जब उसने मुझे अपना नाम बताया तो आई वाज लाइक शॉक कि तुम हो। तो उसने हंस के कहा कि मैम आपने मेरा नाम बहुत सुना होगा। मैंने कहा हाँ, मैंने बहुत सुना है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों ऐसे करते हो कि तुम्हारा नाम हर मीटिंग में लिया जाता है? उसने कहा मैम मसला ये नहीं है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं शरारती ज़रूर हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये लोग जो काम मैंने नहीं भी किया होता ना, उसमें भी मेरा नाम ले देते हैं विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग। तो मैंने सोचा कि अगर हर चीज़ में मेरा नाम आना है ना, तो फिर ठीक है, लेट्स डू इट। उसने कहा कि मैं अब हर जो है ना एक्टिविटी ऐसी डिसरप्टिव उसमें शामिल हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने नहीं भी की होगी तो मेरा नाम आएगा। लेट्स ओन इट। तो अगर आप देखें उसके बैकग्राउंड में कुछ था ना। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दोस फैक्टर्स। अगेन उसको टैग किया गया था, उसको लेबल किया गया था। लेबलिंग इज वेरी डेंजरस। एंड years आफ्टर लीविंग द स्कूल ही केम बैक इन माय ऑफिस, और मैं नहीं पहचान सकी। तो उसने कहा मैम आपने मुझे पहचाना नहीं, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। मैंने कहा ओ अच्छा। तो मेरा पहला सवाल क्या था, मैंने कहा तुम अब भी वैसे ही हो? उसने कहा नहीं मैम, मैं बिल्कुल सुधर चुका हूँ, क्योंकि अब मैं एक पर्सनल लाइफ जो गुजार रहा हूँ उसमें मुझे कोई टैग नहीं करता। उसने कहा मैं बिल्कुल वैसा नहीं रहा। सो that was the reason of his failure as a good student, because he was
tagged and he was labeled. So coming back to the जो हमारा previous जो जी क्वेश्चन जी मैंने पूछा था कि the vocabulary, हम्म अब इसमें what should parents और the teachers understand हम्म जो सिचुएशन है, क्योंकि उस टाइम पे जो वो सिचुएशन है उसकी वो इमोशनल रोलर कोस्टर पे है बिल्कुल बच्चा। तो वो इस टाइम पे, तो उस टाइम पे उसका वो लेक्चरिंग और वो एडवाइस और वो मतलब क्या एग्जैक्टली क्या नहीं, होना चाहिए? लेक्चरिंग इज नॉट द सॉल्यूशन. लेक्चरिंग से तो बच्चा फिर भागता है ना. आप बार बार लेक्चर देंगे, मॉरल लेक्चर देंगे, हर वक्त की नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती. अगेन वही बात है कि लैंग्वेज का यूज आपका कैसे है, किस टाइप के फ्रेजेस आप यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड नॉट मेक इट दिस टाइम और you could not make it yet, but you can make it next time if you work on this. Try this strategy, try to do this. उसको ये नहीं लगेगा कि मुझे फेलियर कह रही हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा तुम नहीं कर सके, नेक्स्ट टाइम तुम अगर मेहनत करो तो यू कैन डू इट. तो दिस इज़ द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट द पेरेंट्स एंड द टीचर्स नीड टू यूज़. थोड़ी सी एनकरेजमेंट हो, थोड़ी सा मोटिवेट करें बच्चे को टूवर्ड्स वर्किंग हार्ड. सिर्फ ये कह देना कि जी बस खत्म हो गया, यू हैव फेल्ड, नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग, नो, दिस इज नॉट द वे. दैट मीन्स कि उस टाइम पे बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स को अपने इमोशंस को इमोशंस को चैनलाइज करने करना है, की जरूरत और होती है. क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत टफ होता है, बहुत टफ. क्योंकि दे वांट टू से समथिंग जी और उस हाँ. रिएक्शन में, और क्योंकि डेफिनेटली ऐसा वो वी कैन अंडरस्टैंड कि जो पेरेंट्स के अच्छा, इमोशन पेरेंट्स ज़्यादा को एक हर्ट. चीज और समझाने की जरूरत होती है कि क्या उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में या अपनी प्रीवियस लाइफ में कभी फेलियर को फेस नहीं किया. Why do they expect their child to give his 100%? हम सब ने कहीं ना कहीं कोई फेलियर फेस किया है ना लाइफ में. तो why do we expect the next generation कि वो 100% देंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बोल के ना मुझे वो याद करवा दिया, आई फॉरगॉट अबाउट इट, कि मैं इसको पहले सेशन में पूछना चाह रहा था आपसे जी जी कि क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वी फेल्ड मैनी टाइम्स और उस फेलियर को हम वो नहीं देखना नहीं चाहते अपने बच्चे में, बिकॉज exactly. वी आर वेरी अटैच्ड, क्योंकि पेरेंट्स, आई गेस इट इज़ नेचुरल, पेरेंट्स का जो रिएक्शन जो बन रहा होता है वो नेचुरल, रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के भी तो तरीके होते वो जो बन रहा है वो दैट इज़ नेचुरल. हैं. हाँ, लेकिन उसको जो आपने अपनी इमोशनल अवेयरनेस पे काम करने की जरूरत है ना, और इमोशनल रेगुलेशन पे भी काम करने की जरूरत है. क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुनिया में फादर एक वो वाहिद इंसान होता है जो अपनी औलाद को अपने से ज्यादा सक्सेसफुल देखना चाहता है. बट व्हाट इफ अ चाइल्ड कैन नॉट बी मोर सक्सेसफुल देन यू. उसको इट इज़ आप पॉसिबल, उठा के फेंक तो नहीं सकते ना. राइट. हर बच्चा तो मतलब नेल्सन मंडेला या कायदे आजम तो नहीं बन सकता ना. अब इसमें फिर एक वो आता है कि पेरेंट्स के लिए चैलेंज अगेन, आई रियली फील फॉर देम, क्योंकि आई एम अ फादर. तो ये चीज़ें बहुत फील होती हैं, और मैं जैसे कहा ना कि इट इज़ नेचुरल. जी. तो व्हेनेवर माय किड इज़ फेलिंग, तो तो हाउ डू यू जो फीलिंग्स हैं वो डेवलप हो रही होती हैं. डेफिनेटली उन फीलिंग्स को आपने जो कन्वे कैसे करना है, दैट मैटर्स द मोस्ट. लेकिन उस बच्चे को फील होता आप देख नहीं सकते ना, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि जो पेरेंट्स, व्हाई कांट यू सी इट. हाँ, दिस इज माय we have to actually. तो that is what actually I was about to ask, कि ये जो पेंडुलम की दोनों एक्सट्रीम्स है ना, दे आर इजी. या तो आप बिल्कुल उन्हें प्रोटेक्ट करें बच्चों को, यानी हर फेलियर से उनको बस सेल थ्रू करवाते जाएं. अगर एक क्लास में वो नहीं क्वालिफाई कर पाए तो उन्हें जंप करवा दें स्कूल से, कह के कि आप अगली क्लास में बस करते हैं. तो एंड इट हैपेंस. हाँ, इट हैपेंस. ये पेरेंट्स, अगर आपके स्कूल में वो बच्चा फेल हो गया और आप उसे प्रमोट नहीं कर रहे, पेरेंट्स क्या करते हैं, आपसे लिविंग सर्टिफिकेट लेते हैं, दूसरे स्कूल में जाते हैं और वहां उसे अगले ग्रेड में एडमिशन दिलवाते हैं. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो कहते हैं जी हमने अपनी फैमिली को भी जवाब देना है, हमने इस बच्चे को जो है ना वो सोसाइटी में भी हमने ये नहीं शो करना कि हमारा बच्चा फेल हो गया, ये रिपीट कर. ये दोनों पार्ट्स पे अनफॉर्चुनेट है, पेरेंट्स के पार्ट पे भी और स्कूल के पार्ट पे भी, कि दोज हु टेक दीज काइंड ऑफ एडमिशंस. और इसमें जो सफर है वो अल्टीमेटली बच्चा कर रहा है, जिसको आप रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं. एक्चुअली वो सफर कर रहा है, एंड यू आर एक्चुअली पुशिंग हिम टुवर्ड्स अ बिगर फेलियर. यस, एंड शॉर्टकट्स, जी, वे आउट, इस तरह के. आप उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें तो आगे, और एंड गाइड हिम, तो आगे जाके वो बेहतर हो सकता है. इंस्टेड ऑफ कि आप उसे उस तरह से शील्ड किए जा रहे हैं कि आप प्रमोट करवाते जा रहे हैं. तो दैट इज
of no use. तो अगर हम इसको देखें तो वी सी टू टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स हम्म, इसको माइंड में रखते हुए। एक ये है कि दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग रेस्क्यूइंग देयर किड्स फॉर नॉट गुड रीजंस, जी यानी कि ये जो हमने अभी एग्जांपल बात की उसके लिए। और द सेकंड इज के दे जस्ट अबैंडन देम, जी कि वो एक ये भी माइंडसेट है कि बच्चे को बिल्कुल पानी में फेंक दो एग्जैक्टली और वो खुद ही करेगा जो करेगा। लेकिन इसको इसका कहीं जो ना कहीं तो आपकी सपोर्ट की जरूरत इसका है। जो हाँ ये जो बैलेंस है दिस इज टफ दो। यस यहीं पे तो प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास टाइम this is the balance which most of the parents are not trained about कि how to strike this balance. मुझे लगता है हमारे यहाँ स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हम स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन पे तो बहुत काम करते हैं बट वी डोंट वर्क ऑन पेरेंट्स ओरिएंटेशन। हम स्पेशली छोटे क्लासेस में बच्चों के लिए स्कूल लेवल पे बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स को गाइड करना कि हाउ यू हैव टू डील विथ योर चिल्ड्रन एंड स्पेशली विद द फेलियर ऑफ योर चिल्ड्रन। ना तो आप उसे कंप्लीट शील्ड दें और ना आप उसको अबैंडन कर दें। यू हैव टू हैव अ बैलेंस बिटवीन बोथ। सो हाउ टू कीप दिस बैलेंस, क्योंकि ये मैंने जैसे कहा कि दोनों चीज़ें आसान है, या तो बच्चे को अबैंडन कर देना या तो बिल्कुल उसे प्रोटेक्ट करते रहना, क्योंकि वही जो हमने बात की कि एक तो पेरेंट्स की कोचिंग बहुत ज़रूरी है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे तो कभी कभी ऐसे भी लगता है कि सोसाइटी में ना हर शख्स को थोड़ी बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत है और इस अगेन फिर वो एक टैबू बन जाता है कि जी हम किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं या हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल तो व्हाई डोंट द स्कूल अथॉरिटीज दे अरेंज दीज सेशंस फॉर पेरेंट्स कि बैलेंस किस तरह स्ट्राइक करना है, क्या लैंग्वेज बोलनी है बच्चों के अंदर, वो कौन सी स्किल्स आपको डेवलप करनी है जिससे वो अपनी फेलियर को सक्सेस में चेंज कर सकें। तो पहले पेरेंट्स को आपको और टीचर्स को सिखाना होगा एंड देन दे विल बी पासिंग इट ऑन टू देयर चिल्ड्रन। So how we can separate the failure from the self-worth, क्योंकि this is one of the things to do I guess, जो पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी हो सकती है जी कि बिल्कुल। अगेन हाउ वी फ्रेम इट। अगर तो फेलियर इज इक्वल टू या सक्सेस इज इक्वल टू, अगर ये इक्वेशन है सेल्फ वर्थ, तो फिर इट इज़ वेरी डैमेजिंग। यस वेरी तो डैमेजिंग। how can we separate these two things? ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज द नैरेटिव। आपको वो नैरेटिव चेंज करना होगा दैट फॉर एग्जांपल इफ अ चाइल्ड फेल्स, तो हमारे यहाँ जनरली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अ चाइल्ड, वी एज ह्यूमन बीइंग्स एडल्ट्स एज वेल, हमारे साथ कोई सेटबैक हो जाता है लाइफ में तो हमारा पहला जुमला जो होता है वो होता है कि वाई एम आई, वाई ओनली मी। ठीक है, हम समझते हैं सिर्फ मेरे साथ ये हुआ है। सो दिस नैरेटिव नीड्स टू बी चेंज। हमें बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि इफ़ यू आर फेसिंग अ फेलियर, डोंट थिंक दैट इट्स ओनली विद यू, ट्राई टू थिंक व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम This is दिस, important. व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ। सो एक तो ये नैरेटिव आपको चेंज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है और ये नैरेटिव बच्चे में चेंज होगा थ्रू टीचर्स एंड थ्रू पेरेंट्स। दूसरी बात, एक और नैरेटिव चेंज करने की ज़रूरत है कि फेलियर को अगेन जो मैंने पहले बात की थी कि उसको लाइफ का डेड एंड मत डिक्लेयर करें, उसको अपॉर्चुनिटी डिक्लेयर करें फॉर लर्निंग, फॉर फ्यूचर, फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर फ्यूचर। ये नैरेटिव जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ना तो फेलियर एक टैबू ही रहेगा आपकी सोसाइटी में। पेरेंट्स को भी ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, टीचर्स को भी ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, सोसाइटी को एज अ होल ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आप देखें इवन ऑफिसेज में, प्रोफेशनल वर्क प्लेसेस में, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो एम्प्लॉयर्स की तरफ से, बॉसेस की तरफ से उसको फेलियर डिक्लेयर कर दिया जाता है। दे डोंट ट्राई टू आइडेंटिफाई हिज एनर्जीज कि ये किस जगह पे चैनलाइज की जा सकती हैं। एक तो इस नैरेटिव को चेंज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है और ये टीचर्स और पेरेंट्स मिलके कर सकते हैं कि इट्स नॉट ओनली यू, इट्स बेसिकली इट्स एन अपॉर्चुनिटी, अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम दिस। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप बच्चों को सिखाएं कि दे हैव टू आइडेंटिफाई देयर सेल्फ वर्थ।
उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है कि उनमें क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, कौन सी स्किल्स उनकी बेहतर हैं, वो क्या करने के काबिल हैं, किस तरह से वो उस चीज़ को पॉलिश कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कभी किसी बच्चे को ये नहीं कहा कि तुम खुद ट्राई करो आइडेंटिफाई करना कि व्हाट आर यू गुड एट, ठीक है ना? तो बच्चे की वो जो एक सेल्फ वर्थ है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी कॉम्पिटेंसीज की, उसकी कैपेबिलिटीज़ की, वो उसको सिखाना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स को भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है एंड देन दे हैव टू कम्युनिकेट इट विद द पेरेंट्स एज वेल। टुगेदर दे कैन वर्क फॉर इम्प्रूविंग दोज स्किल्स। तो ये 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और फिर वही बात कि इमोशनल रेगुलेशन। बच्चा फेल हो गया है, बच्चे को आपने टैग कर दिया, लेबल कर दिया, वो इमोशनली शटर हो गया। उसको सिखाएं कि अच्छा, इफ़ यू हैव फेल्ड इन समथिंग, ट्राई टू आइडेंटिफाई हाउ डू यू फील राइट नाउ एट दिस फेलियर। जब वो आइडेंटिफाई कर लेता है अपने इमोशन को, देन आस्क हिम टू try to think कि how can you regulate this emotion, how can you overcome this emotion, what can you do so that you cannot face the same emotion, you don't have to face the same emotion next time. जब आप ये चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चे में फेलियर की एक्सेप्टेंस, और फिर अगेन वही बात कि सबसे पहले पेरेंट्स की जो ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन है इस मामले में, वो बहुत ज़रूरी है। Right. तो only then you can expect better results. How schools can help parents to achieve this objective जो आज हमने बात की कि we have to normalize in a certain way, failure in a certain way. तो इसको स्कूल कैसे जो है वो कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल माय डॉटर जो जहाँ पे ज़्यादा भी पढ़ती हैं, तो देयर इज़ एन इंक्लूजन काउंसलर एट ज़्यादा। तो वन डे आई रिसीव्ड अ कंप्लीट रिपोर्ट अबाउट हर, जो कि ऑलमोस्ट ऑफ दैट वाज ऑफ 10 पेजेस। तो इट वाज वेरी डिस्क्रिप्टिव और आई रियली लाइक्ड इट, क्योंकि उसमें उसके एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, then recommendation for the teachers and then recommendation for the parents what they should do। जी, और उसके बाद भी फिर जो पेरेंट्स के साथ एक कोलैबोरेशन के जो है वो उसको कौन कौन से माइलस्टोन्स अब अचीव कर लेने चाहिए इस अपनी इमोशनल रेगुलेशन के अंदर एंड ऑल। तो इट वाज वेरी इफेक्टिव एज अ पेरेंट फॉर it मी, was a guideline for इट you. वाज अ गाइडलाइन फॉर मी, क्योंकि आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। इफ आई वाज तो आई हैड नो वे आउट कि इसको मैंने किस तरह से जो है वो लेकर चलना है। है। तो व्हाट कुड बी द अदर थिंग्स दैट स्कूल्स कैन डू, और जो कि टीचर्स को भी हेल्प करें, पेरेंट्स को भी हेल्प करें, और अल्टीमेटली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू अगेन उस बच्चे को रेजिलिएंट बनाना है। यस तो व्हाट आर द अदर यू कैन से टेक्निक्स एंड सर, अगेन वही बात है कि आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है विद द पेरेंट्स, दैट शुड बी वेरी स्ट्रांग। जैसे आपने बात की, इन द सेम वे इफ लाइक जब हम बात करें फॉर एग्जांपल अर्ली इयर्स में जो है, देयर इज़ अ ग्रेट नीड, और उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्ली इयर्स जो होता है, कि आपने कम्युनिटी को, स्टेक होल्डर्स को कैसे इन्वॉल्व करना है, आपकी पेरेंट्स के साथ एंगेजमेंट जो है वो कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप कम्युनिकेट करते हैं पेरेंट्स के साथ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स जो मे बी यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एट द स्कूल लेवल। हो सकता है बच्चे की फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसके कोई इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं। आपने देखा आजकल बहुत सारे बच्चे एडीएचडी का शिकार हैं, जी right. और इसी तरह की माइनर ऑटिज्म आ जाता है, कुछ भी हो सकता है, स्लो लर्नर्स हैं। ये बेसिकली एक टू वे ट्रैफिक है जो आपको चलानी होगी, और जितना आपका कम्युनिकेशन चैनल स्ट्रांग होगा विद द पेरेंट्स, उसमें दोनों मिलकर जो है आइडेंटिफाई कर सकेंगे प्रॉब्लम्स को, और सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो भी मिलकर निकालने होंगे। अगेन उस कम्युनिकेशन में आपका जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यही है कि हाउ टू हैंडल फेलियर ऑफ देयर चाइल्ड। उसको हम फेलियर का नाम दे दें या उसको हम स्ट्रगल का नाम दे दें, मीटिंग द चैलेंजेस का नाम दे दें, आप कोई भी पॉजिटिव जो है फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल डिस्करेज किया जाता है फेलियर का वर्ड यूज़ करने का। पेरेंट्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अगर
कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है एकेडमिक्स में या बिहेवियर में या किसी भी फील्ड में, तो एक तो आइडेंटिफाई किस तरह करना है फैक्टर्स को। दे शुड बी एनकरेज्ड कि वो ओपन कम्युनिकेशन करें। आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं दे ट्राई टू हाइड इफ जी देयर इज सम प्रॉब्लम विद द चाइल्ड। जी इट हैपेंस। अगर बच्चे की कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो नहीं बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि उन्हें डर वही अगेन होता है कि बच्चे को लेबल। टैग कर दिया जाएगा, लेबल कर दिया जाएगा। फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हैं, नहीं बताएंगे। ये तमाम फैक्टर्स वो हैं जो बच्चे की सक्सेस और फेलियर को बहुत ज़्यादा डिटर्मिन करते हैं और उसमें रोल प्ले करते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन विद द पेरेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उस कम्युनिकेशन विद द पेरेंट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू गाइड देम कि हाउ टू डील विद अ चाइल्ड हु इज़ फेसिंग चैलेंजेस। उन चैलेंजेस को फेस करने में उन्हें आपको बताना पड़ेगा आपको किस टाइप की लैंग्वेज बच्चे के साथ यूज़ करनी है। आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि उन कौन सी स्किल्स बच्चे में डेवलप करनी है। परसिवियरेंस आनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हिमसेल्फ, रिफ्लेक्टिव बिहेवियर होना चाहिए, अपने रिफ्लेक्ट करे अपने एक्शंस पर, अपने चैलेंजेस के ऊपर। जब ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को, मुझे लगता है पेरेंट्स के ओरिएंटेशन सेशंस करवाना, पेरेंट्स के साथ कोई सेमिनार्स करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड सेम अप्लाइज ऑन टीचर्स। आपको अपने स्टाफ की जो ये है ना ट्रेनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर, इमोशनल अवेयरनेस के ऊपर। ये चीज़ें मिलकर जो हैं वो हेल्प करेंगी टू फैसिलिटेट those children who are facing challenges with maybe academics, maybe emotional, social, whatever. तो टू वे ट्रैफिक चलाना बहुत ज़रूरी है। एक देयर इज अ प्रॉब्लम इस फेलियर में। समटाइम इट हैपेंस कि वो इट इज ऑन द चाइल्ड, ये उसके ऊपर है। और समटाइम ये भी इस कम्युनिकेशन के अंदर आई हैव सीन इट क्योंकि आई वाज प्रिंसिपल जी वंस। तो जब मैंने इन चीज़ों को व्हेन यू ट्राई टू कम्युनिकेट ओपनली, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि उसमें हेजिटेशन बच्चे की बहुत जो होती है। फेलियर है हाँ वो एक्चुअली टीचर की फेलियर बन जाती है। जी, और बिकॉज ऑफ फुल हाइड यू, करने की कोशिश बिकॉज करते हैं। बिकॉज यू फेल्ड आर हाँ, किड, या और आप ये प्रिंसिपल की तरफ से भी आता है कि एग्जैक्टली आपकी वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं। तो उसमें से बच्चे तो फिर निकल जाते हैं हाँ काफी हद तक। बिल्कुल। फिर बात टीचर पे आ जाती है। तो बात सेम अप्लाइज फॉर दिस सिचुएशन। देखिए, उसमें मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपको अर्ली स्टेज पे जब बच्चा आपके पास आए ना, तो उसकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं। आप अगर उस स्टेज पर देखें, बात अगेन वही आ गई ना जो अभी हमने बात की थी कि टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है इस इन दिस रिगार्ड, पेरेंट्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब टीचर ट्रेंड हो जाएगी ना, तो फिर शी विल अप्लाई दोज स्ट्रेटजीज जो कि आप उसको उस प्रोफेशनल ट्रेनिंग में बताएंगे। जब वो अप्लाई करेगी तो डेफिनेटली उसमें कोई इम्प्रूवमेंट भी बच्चे में नज़र आनी शुरू होगी। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अर्ली स्टेज पे आप आइडेंटिफाई कर लें प्रॉब्लम, कम्युनिकेट करें एडमिनिस्ट्रेशन को भी और पेरेंट्स को भी, एंड ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन विद म्यूचुअल एफर्ट्स। उसके बाद फिर आप देखिए कि रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। और उसमें फिर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि यू हैव टू मॉनिटर कि टीचर्स को आपने जो ट्रेन किया है क्या वो उसको अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो ट्रेनिंग ले लेते हैं बट दे डोंट अप्लाई इट। तो वो फिर मॉनिटरिंग बड़ी जरूरी मेजर है, कर हाँ, ऑन पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। जब तक आप उसको इंश्योर नहीं करेंगे ना, और टीचर्स में भी देखें एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं। तो आपको लगता है कहीं पे कि वो जो लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए थी विद अ चाइल्ड हु इज़ स्ट्रगलिंग, तो वो लैंग्वेज नहीं यूज़ हो रही, नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है, उसको लेबल किया जा रहा है, तो उसमें फिर आपको चेक करने की ज़रूरत है। एंड अगेन यू हैव टू वर्क ऑन द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ योर स्टाफ एज, स्टाफ है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी हो जाता Right. है। So that was very helpful. One last thing I would like to ask from you कि क्या आपका the experience and all. What could be the first step जो इस जर्नी को तय करने के लिए for the parents and the teachers कि वो आज इसको सुनने के बाद, इसको देखने के बाद कि वो उसको प्रैक्टिकली एक स्टेप को लें ताकि उनकी जो है ये सफ़र स्टार्ट हो बच्चे की रेजिलियंस को जो है वो जी, क्रिएट करने के लिए, बिल्कुल। बिल्ड करने के लिए। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें मैं कहूँगी।
नंबर 1 जो मैंने कहा था, चेंज द नैरेटिव. Change. Why only me? Change it into what can I learn from this experience. Right. बच्चे के लिए, पेरेंट के लिए, why only my child ना कहें. Hmm. Why is only my child failing? No. What can he learn from this? What can we as parents learn from this? ये नैरेटिव चेंज करने की बहुत ज़रूरत है. और दूसरा, आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन किस किस चीज़ में? एक फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं, Hmm. विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हिज फेलियर और हिज स्ट्रगल, उन फैक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन एंड देन उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी कॉम्पिटेंसीज की आइडेंटिफिकेशन. Right. आपने आइडेंटिफाई कर लिया फैक्टर्स क्या हैं जो उसको फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं. अब आपने उसकी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है, उसकी पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको उन पोटेंशियल्स और उन कॉम्पिटेंसीज के साथ लेकर चलें. यू हैव टू वर्क ऑन दैट. सबसे पहले तो मुझे लगता है आपको नैरेटिव और माइंडसेट Narrative. चेंज करने की. This is very important. यस. जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे और आप बच्चे को कहते रहेंगे यू आर अ फेलियर, वो स्ट्रगल करना छोड़ दे. Understanding the failure, फिर उसको accept करना. एक्सेप्टिंग द क्योंकि फिर फेलियर. narrative, जी, it would be helpful to बिल्कुल change that. बिल्कुल. कि- मतलब पेरेंट्स को ये बताने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि फेलियर कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, डेड एंड नहीं है. इसको आप आगे लेकर चल सकते हैं टू इम्प्रूव. माइंडसेट चेंज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है. Thank you very much. Thank I'm you so much, quite sir. hopeful that we have added some value to the parenting, to Yeah. the teaching, and to the well-being of overall I hope of a जी, child. I hope when the parents listen to this conversation, they try to catch the gist of it, and they try to bring some change in their narratives and in their mindset of how to accept the failure of their child. I would not say failure, the struggle of their child. This struggle with the child. That is the right word, जी, right vocabulary. right We were vocabulary. been talking about. So thank you very much. Thank you so much, sir. Thank It's you for wonderful having you for our podcast. Hopefully, I will see you again. Inshallah, whenever you invite us, we will be there. With some other topic, inshallah. Inshallah. Thank you so much. Thank you very much. And for the parents, your child doesn't need actually a perfect pathway. Actually, he needs a strength to walk the difficult one. Thank you very much. See you next time. Assalamu alaikum.